Hello, hello, hello. Good evening, everybody. Good morning, good afternoon. બધા મજામાં હશો? સી ફાઉન્ડેશનની તૈયારી જોરશોરમાં ચાલુ હશે. તમારા માટે આરટીપીનો હજી ક્વેશ્ચન રેકોર્ડ કરી રહ્યો છું, જેમાં અમુક સ્ટુડન્ટ્સને ડાઉટ હતા. આ ચેપ્ટર ઇમ્પોર્ટન્ટ પણ છે. એન્ડ ક્વેશ્ચન નંબર છે ક્વેશ્ચન નંબર 9. મેન્યુફેક્ચરિંગ કંપનીનો ક્વેશ્ચન છે. સરસ ક્વેશ્ચન છે. ઇઝી છે. થોડી પ્રોપર પ્રેક્ટિસ કરીએ તો વાંધો નહીં જ આવશે. અને નોર્મલી મેન્યુફેક્ચરિંગના ક્વેશ્ચનમાં મેન્યુફેક્ચરિંગ એકાઉન્ટ હોય, ટ્રેડિંગ એકાઉન્ટ હોય, પીએનએલ એકાઉન્ટ હોય અને બેલેન્સ શીટ હોય, આટલું બધું પૂછેલું હોય છે. આ ક્વેશ્ચન તો હજી એનાથી પણ ઇઝી છે, જ્યાં તમને ખાલી મેન્યુફેક્ચરિંગ, ટ્રેડિંગ અને પીએનએલ પૂછેલું છે. સો અગર ક્વેશ્ચનમાં તમને ડાઉટ છે, ક્વેશ્ચન તમે ટ્રાય કરી છે, મેન્યુફેક્ચરિંગ એકાઉન્ટના કન્સેપ્ટમાં થોડું કન્ફ્યુઝન થાય છે, રો મટીરિયલની એન્ટ્રી કેમ કરવાની, રો મટીરિયલ કન્ઝ્યુમની એન્ટ્રી કેવી રીતે કરવાની, ડબ્લ્યુઆઈપીની એન્ટ્રી કેવી રીતે કરવાની, જરા કન્ફ્યુઝન છે તો આ ક્વેશ્ચન ટ્રાય કરજો, તો આ ક્વેશ્ચન જોજો. અધરવાઇઝ આ ક્વેશ્ચનમાં કઈ નવું નથી, ટાઈમ નહીં બગાડતા. રાઈટ, લેટ અસ મૂવ ઓન. આગળ વધીએ છીએ આપણે. Here I share the screen. Here I share the question, people. જુઓ જરા ક્વેશ્ચન અહીંયા છે તમારી સામે, ક્વેશ્ચન નંબર 9. March 2024. શું થાય છે? The trial balance of Mr. Robin was as follows. Trial balance તમને આપેલું છે. अच्छा, stock as on 1 for 2023 એટલે ઓપનિંગ સ્ટોક કહી શકાય બચ્ચા પાર્ટી? ઇઝ ધીસ ઓપનિંગ સ્ટોક? કોર્સ યસ સર, ઓપનિંગ સ્ટોક છે. કેનો રો મટીરિયલ, ડબ્લ્યુઆઈપી, ફિનિશ ગુડ્સ નો. ઓકે, પછી સન્ડ્રી ડેટર્સ આપેલા છે યાર. સન્ડ્રી ડેટર્સ બેલેન્સ શીટમાં જશે સર. આપણે બેલેન્સ શીટ તો બનાવવાની ક્વેશ્ચનમાં કીધી જ નથી. સો અત્યારે આપણા માટે ઇરરિલેવન્ટ છે. બેલેન્સ શીટની હરેક આઈટમ આપણા માટે અત્યારે ઇરરિલેવન્ટ છે. કરેક્ટ? હું આવું ક્રોસ નથી કરતો, બટ યસ, કઈ માર્ક કરી રાખું છું સો દેટ યુ હેવ ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ કે આ બેલેન્સ શીટની લગતી આઈટમ છે. એન્ડ કેરેજ ઓન પરચેસીસ, કેરેજ ઠીક છે. અચ્છા, યાદ કરીએ, કેરેજ ઓન પરચેસ છે, મેન્યુફેક્ચરિંગમાં જશે. બિલ્સ રિસીવેબલ અગેન બેલેન્સ શીટ આઈટમ છે. વેજીસ મેન્યુફેક્ચરિંગમાં જશે. સેલરીઝ, નાઉ સેલરી વેજીસ મેન્યુફેક્ચરિંગમાં જશે. એન્ડ જે સેલરીઝ છે દેટ વિલ ગો ટુ પીએનએલ એકાઉન્ટ. એનું રીઝન અગર ખબર હોય, વેજીસમાં અને સેલરીમાં શું ડિફરન્સ છે અગર ખબર હોય તો મને કમેન્ટ બોક્સમાં લખીને આપો ને. લેટ અસ જસ્ટ ચેક કેટલા લોકોને ખબર છે વેજીસ અને સેલરીઝનો ડિફરન્સ. રાઈટ, લેટ અસ જસ્ટ સી ટુ ઇટ. Telephone and internet charges, yes, it will go to P&L. Repairs to office furniture, P&L. Cash and bank છે, બેલેન્સ શીટ આઈટમ છે. ઓફિસ ફર્નિચર બેલેન્સ શીટ આઈટમ છે. યસ, એના પરનું ડેપ્રિસિએશન હોઈ શકે. રિપેર્સ ટુ પ્લાન્ટ, P&L. Purchases, નાઉ આ પરચેસ કેનું હશે? ઓફકોર્સ રો મટીરિયલનું હશે. રો મટીરિયલ પરચેસ કર્યું હશે અને આપણે ડબ્લ્યુઆઈપી પ્રોસેસ કરશું અને ફિનિશ ગુડ્સમાં કન્વર્ટ કરશું. પ્લાન્ટ એન્ડ મશીનરી અગેન અસેટ છે, બેલેન્સ શીટ આઈટમ છે. અગેન ડેપ્રિસિએશન કેન બી ધેર. કરેક્ટ. રેન્ટ, રેન્ટ પર એડજસ્ટમેન્ટ છે બેટાજી ક્વેશ્ચનમાં, આપણે હમણાં આગળ જોઈશું. લાઇટિંગમાં એડજસ્ટમેન્ટ છે. જનરલ એક્સપેન્સીસ, પીએનએલ. સિન્ડિકેટ ક્રેડિટર્સ બેલેન્સ શીટ આઈટમ છે, નોટ રિક્વાયર્ડ. પીએનએલ સુધી જ બનાવવાનું કીધું છે એટલા માટે. બિલ્સ પેએબલ બેલેન્સ શીટ આઈટમ છે. સેલ ઓફ સ્ક્રેપ, સેલ ઓફ સ્ક્રેપ મેન્યુફેક્ચરિંગ એકાઉન્ટમાં ક્રેડિટ સાઇડ આપણે રેકોર્ડ કરીએ છીએ. યસ, યાદ આવે છે. કોઈ મેજર ઇન્કમ નથી હોતી આ, પણ યસ, આપણી કંઈક મેન્યુફેક્ચરની જે કોસ્ટ છે રિડ્યુસ કરવા માટે આપણે સેલ ઓફ સ્ક્રેપ મેન્યુફેક્ચરિંગ એકાઉન્ટમાં ક્રેડિટ સાઇડ એને રેકોર્ડ કરીએ છીએ. પરફેક્ટ. કમિશન રિસીવ્ડ, પીએનએલ એકાઉન્ટ ક્રેડિટ સાઇડ. પ્રોવિઝન ફોર ડાઉટફુલ ડેટ્સ, પીડીડી નું જે એડજસ્ટમેન્ટ કરો છો એ જ છે. કેપિટલ એકાઉન્ટ બેલેન્સ શીટની આઈટમ છે, આપણે રિક્વાયર્ડ હમણાં નથી આ. સેલ્સ અને બેંક ઓવરડ્રાફ્ટ અગેન બેલેન્સ શીટ આઈટમ, લાયબિલિટી. So adjustment શું કે છે? The following additional information is available. 31st March 2024. રો મટીરિયલ એટલે કે ક્લોઝિંગ સ્ટોકની વાત થઈ રહી છે બેટા. ક્લોઝિંગ સ્ટોક રો મટીરિયલનો, ફિનિશ ગુડ્સનો અને ડબ્લ્યુઆઈપી નો તમને આપેલો છે. ઓકે. સેલરીઝ એન્ડ વેજીસ અનપેડ for the year 31st March 2024 were respectively 27,000 and 60,000. સેલરીઝ અને વેજીસ 27 અને 60. બેટા સેલરીઝમાં અને વેજીસ સ્ટાર ત્યાં એડજસ્ટમેન્ટ છે. સેલરીઝમાં અને વેજીસમાં. ઓકે, ત્યાર પછી મશીનરી ટુ બી ડેપ્રિસિએટેડ બાય 10%. મશીનરીને ડેપ્રિસિએટ કરવાનું છે. કેટલું ડેપ્રિસિએટ કરવાનું છે? 10%. એન્ડ ફર્નિચર બાય 7.5%. મશીનરી અને ઓફિસ ફર્નિચર ડેપ્રિસિએશન આપેલું છે, એડજસ્ટમેન્ટ છે. ઓકે, એન્ડ એના પછી પ્રોવિઝન ફોર ડાઉટફુલ ડેટ્સ ટુ બી મેઇન્ટેન્ડ એટ ધ રેટ ઓફ 1% ઓફ સેલ્સ. 1% ઓફ સેલ્સ. સો સેલ્સના 1% આપણે પીડીડી ક્રિએટ કરવાનો છે. તો અહીંયા કંઈક પ્રોવિઝન ફોર ડાઉટફુલ ડેટ્સ છે, એના પર એક એડજસ્ટમેન્ટ માર્ક કરી લઉં છું. એના પર કંઈક તો એડજસ્ટમેન્ટ છે. શું આપણે જોઈશું. Rent is to be charged as 3/4
टू फैक्ट्री एंड 1/4 ऑफ ऑफिस। मैंने रेंट में ऑलरेडी बेटा जो एडजस्टमेंट मार्क किया हुआ है, राइट, एंड लाइटिंग में भी मैंने एडजस्टमेंट मार्क कर दिया था, एज देयर इज अनदर एडजस्टमेंट ऑन लाइटिंग। लाइटिंग इज टू बी चार्ज एज 2/3 फॉर फैक्ट्री एंड 1/3 टू ऑफिस। तो सर फैक्ट्री का है वो किधर जाएगा? फैक्ट्री का मैन्युफैक्चरिंग में। ऑफिस का है वो किधर जाएगा? पीएनएल में जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आई होप सबको यहाँ तक का बेसिक फंडा समझ में आ गया होगा। अगर यहाँ तक का क्वेश्चन आपने बने हुए मेरे साथ, एंड फाइनली अपना आंसर पहले तो चैट बॉक्स में डालिए, उसके बाद रिमेनिंग क्वेश्चन को चेक करिएगा। ठीक है, आई एम मूविंग ऑन। चलो तो अभी अपन गाड़ी को आगे बढ़ाते हैं बच्चा, एंड ये भी मूव ऑन। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट चाहिए मुझे। मैंने यहाँ पे 3 अकाउंट्स बनाने हैं। फर्स्ट इज मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ये आरटीपी का क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। दूसरा अपन को कौन सा चाहिए? ट्रेडिंग अकाउंट चाहिए। ट्रेडिंग अकाउंट भाई वेरी वेल नो पूरे पेज का नहीं चाहिएगा, बट ठीक है अपन पूरे पेज का ही बना रहे हैं। आप चाहो तो शॉर्टर बना सकते हो, योर चॉइस। बट एक मेरी ऐसी हैबिट है कि यार पूरे पेज में एक अकाउंट तो थोड़ा वो नीट एंड क्लीन अच्छे से दिखेगा, मजा आएगा, है ना। चलिए, यस डेबिट क्रेडिट एंड ऑल आप लिख लीजिएगा, पर्टिकुलर अमाउंट पर्टिकुलर अमाउंट। सिंस वीडियो का टाइम थोड़ा लिमिटेड रखना है, इसलिए मैं फटाफट फटाफट भाग रहा हूँ। आई एम मूविंग। स्टॉक एज ऑन 1/4/2023 ओपनिंग स्टॉक हो गया। तो सबसे पहले आइटम मैन्युफैक्चरिंग में डेबिट साइड क्या होता है? रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड होता है, इफ यू रिमेंबर, टू रॉ मटेरियल्स कंज्यूम्ड। सर मतलब क्या? रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड का क्या मतलब है? अच्छा, ओपनिंग में मान लेते मेरे पास 10,000 यूनिट्स थे, मैंने परचेज किए 50,000। कितने हो गए? 60,000 हो गए। अभी लास्ट में मेरे पास सिर्फ 2,000 यूनिट्स पड़े हैं। 60,000 होना चाहिए था, सिर्फ 2,000 यूनिट्स पड़े हैं। मतलब मैंने कितना कंज्यूम किया? सर 60,000 होने चाहिए, 2,000 पड़ा है, मतलब 58,000 यूनिट्स आपने कंज्यूम किए। एग्जैक्टली ये हो गया रॉ मटेरियल कंज्यूम। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल विल गिव यू रॉ मटेरियल कंज्यूम। ये आपका कॉस्ट है। ठीक है, तो रॉ मटेरियल का आपको स्टॉक दिया, कितना दिया? 6,30,000। ओपनिंग स्टॉक है 6,30,000। ओके, उसके बाद वर्क इन प्रोग्रेस का ओपनिंग स्टॉक। सर वो किधर जाता है बेटा जी? वर्क इन प्रोग्रेस का ओपनिंग स्टॉक भी इधर ही जाता है, मैन्युफैक्चरिंग डेबिट। और डब्ल्यूआईपी का क्लोजिंग स्टॉक, डब्ल्यूआईपी का क्लोजिंग स्टॉक विल गो टू मैन्युफैक्चरिंग क्रेडिट। ओपनिंग स्टॉक किसका है ये? डब्ल्यूआईपी का। वर्क इन प्रोग्रेस कितना है? 2,85,000। एंड उसके बाद फिनिश गुड्स का ओपनिंग स्टॉक है। फिनिश गुड्स का ओपनिंग स्टॉक किधर रिकॉर्ड करो? ऑफ कोर्स सर, ट्रेडिंग अकाउंट, बिल्कुल। टू 4,65,000। चलो, सबको सब कुछ समझ में आया यहाँ तक? एवरीबॉडी यस? ओके। सन्ड्री डेटर्स का इंफॉर्मेशन है। डेटर्स किधर जाएगा? सर बैलेंस शीट असेट साइड। क्या अपन बैलेंस शीट बना रहे हैं? क्वेश्चन क्या बैलेंस शीट पूछा है? आंसर इज नो, तो इसलिए मैं आगे बढ़ रहा हूँ। उसके बाद कैरेज ऑन परचेजेस। भाई ये परचेज का खर्चा है, डायरेक्ट एक्सपेंस है, और ये मुझे बिल्कुल मैन्युफैक्चरिंग में रिकॉर्ड करना पड़ता है। टू कैरेज, कितना है कैरेज का एक्सपेंस बेटा? 45,000। कैरेज इज 45,000। नेक्स्ट, उसके बाद बिल्स रिसीवेबल किधर जाता है? बैलेंस शीट असेट सर, नॉट रिक्वायर्ड। वेजेस, उसके बाद है वेजेस। वेजेस कितना है? 3,90,000। किधर जाएगा वेजेस? वेजेस जाना चाहिए मैन्युफैक्चरिंग डेबिट। अमाउंट कितना है? 3,90,000। सिंस देर इज एन एडजस्टमेंट, बेटा तो मैं इनर कॉलम में लिख रहा हूँ, इफ यू रिमेंबर हमने एडजस्टमेंट भी मार्क किया हुआ है। सैलरीज, सैलरीज किधर जाना है? पीएनएल अकाउंट डेबिट साइड सर, बिल्कुल, टू सैलरीज। अमाउंट इज 3 lakhs। इनर कॉलम में पीएनएल में जाना चाहिए बेटा, टू सैलरीज। अमाउंट है 3 lakhs।
ओके, इग्नोर कॉलम में। परफेक्ट, यहाँ तक सब समझ में आ रहा है बेटा? नाउ देयर आफ्टर सैलरी के बाद जो हो गया 3 लाख, उसके बाद द नेक्स्ट इज टेलीफोन एंड इंटरनेट चार्जेस। कितना है? 30,000 टू टेलीफोन एंड इंटरनेट। एंड इंटरनेट चार्जेस कितना? टेलीफोन एंड इंटरनेट कोई एडजस्टमेंट तो नहीं है? कितना अमाउंट? 30,000। लेट अस मेक इट 30,000 ईयर। उसके बाद नेक्स्ट, रिपेयर्स टू ऑफिस फर्नीचर। रिपेयर्स टू ऑफिस फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर को रिपेयर कराया, कितना है? 10,500। उसके बाद कैश एट बैंक दिया है, किधर जाएगा? बैलेंस शीट असेट, नॉट रिक्वायर्ड। ऑफिस फर्नीचर बैलेंस शीट असेट, लेकिन उसका डेप्रिसिएशन का एडजस्टमेंट जब अपन करेंगे उसको यहाँ पे रिकॉर्ड बिल्कुल करेंगे। रिपेयर्स किधर जाएगा? सोच के बताओ ना। प्लांट मतलब मैन्युफैक्चरिंग की बात हुई बच्चा, तो रिपेयर्स टू प्लांट जाना चाहिए भाई, मिस्टेक मत कर देना, वो जाना चाहिए मैन्युफैक्चरिंग टू रिपेयर्स टू प्लांट। क्या ये मैन्युफैक्चरिंग का खर्चा हुआ? ठीक है ना? कितना है? 33,000। सबको समझता है यहाँ पे बच्चा? एवरीबॉडी? બોલ બેટા. સર ઓલી જે અમાઉન્ટ લખવાની છે જીવનમાં એ બી જીએસટી લખું ને 12% એડ કરીને જે amount છે એ જ પેનો છે. ઈ જ ફાઇનલ છે. હમ. ઓકે તો ઈ જ લખવાની છે ને. અને હજી એક મને ડાઉટ છે જે મને સમજાતું નથી કે કેમ કરાય એટલે તમને બતાવવું પડશે. અરે હું તમને મારું બતાવી રેકોર્ડિંગ ચાલુ છે, જલ્દી કર. પોઝ કર્યું. સર જુઓ બાકી બધા મને ખબર છે કે આપણે સિલેક્ટ કરીને મર્જ એન્ડ સેલ કરી નાખી તો થઈ જાય. તો હવે આમાં હું મર્જ કરીશ તો એ તો બધામાં શ્રદ્ધા એન્ટરપ્રાઇઝ મને લખીને દઈ દેશે. તો કેવી રીતે કરવાનું એ મને નહીં ખબર. સવાલ નહીં મેં તો તેર મોકલી દે ને ચાલશે. મોકલી દઉં હા. તમે કરી લેશો એમ? હેલો, ઓલા પરસોત્તમ ભાઈ નો ફોન આવે છે. જવાનું છે ને તારે? મેં તને નંબર મોકલ્યો ને, તારે વાત કરી લે ને જરાક છે. હા એની યાર વાત કરીને જાજે. હા હા, પણ પેલા ફોન કરજે પછી જાજે. जी, yes बच्चा पार्टी। repairs to plant we just made it। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट डेबिट साइड। thereafter purchases, ये परचेज किसका होगा? फिनिश गुड्स का होगा, रॉ मटेरियल का होगा, डब्ल्यूआईपी का होगा, किसका होगा? सो परचेज तो कुछ भी हो सकता है। नहीं बच्चा, जब भी अपन मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, क्वेश्चन में अगर कुछ भी नहीं बोला तो परचेज वुड बी ऑफ रॉ मटेरियल, है ना? उसको प्रोसेस करके अपन डब्ल्यूआईपी एंड देन फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करेंगे, तो ये परचेज है रॉ मटेरियल। कुछ नहीं कहा तो यही मानने का। रिपेयर्स के बाद परचेसेस 25,50,000 एंड दैट इज व्हाट रॉ मटेरियल का परचेज 25,50,000। देन ओके, प्लांट एंड मशीनरी बैलेंस शीट एसेट। रेंट दिया भाई, रेंट रेंट के ऊपर एडजस्टमेंट भी था, चलो कर ही लेते हैं साथ साथ में। रेंट है 1,80,000 और वहां पे बोला हुआ है रेंट इज टू बी चार्जेस 3/4 टू फैक्ट्री एंड 1/4 टू ऑफिस। 3/4 टू फैक्ट्री, 1/4 टू ऑफिस। तो भाई 1,80,000 का 3/4
1,80,000 divided by 4. Yeah. 1,80,000 into 3 divided by 4. That comes to 1,35,000. And the 3/4 should be charged to factory. Okay. तो अपन यहाँ पे टू रेंट डाल देंगे 1,35,000 एंड 1/4 टू ऑफिस. ऑफिस का रेंट जो है वो किधर जाना चाहिए, आप बताओ ना मेरे को, किधर जाना चाहिए. P&L में फोर्स टू ऑफिस रेंट. रेंट कितना, 1/4. 1,80,000 का 1/4, that should be 45,000. Everybody, yes, okay. लाइटिंग एक्सपेंसेस, लाइटिंग बच्चा पार्टी, लाइटिंग 40,500 का लाइटिंग का एक्सपेंस है. सोच के मेरे को बताओ ना, लाइटिंग का क्या करना है. लाइटिंग का भी नहीं, मेरे को ब्रेकअप दे दिया है. लाइटिंग का 2/3 जो है वो फैक्ट्री को डालना है, 1/3 जो है वो ऑफिस को डालना है. अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा एक ध्यान रखना है. कभी कभी क्वेश्चन में दिया होता है लाइटिंग भी दिया है और पावर भी दिया है, पावर एंड फ्यूल. अगर पावर एंड फ्यूल बोला है तो मैन्युफैक्चरिंग के लिए मानो, लाइटिंग बोला तो ऑफिस के लिए मानो. बट इधर लाइटिंग ही एक ही वर्ड है, और लाइटिंग में भी ब्रेकअप आपको दे दिया है कि भाई आपको फैक्ट्री का कितना मानना है, 2/3, और ऑफिस का कितना मानना है, 1/3. बहुत सिंपल हो गया ना. लाइटिंग इज 40,500. फैक्ट्री का जो है दैट इज 2/3. तो इफ यू डोंट माइंड, मैं जस्ट ब्रैकेट में मेंशन कर लेता हूँ ताकि रिवीजन के टाइम आपको याद आए. 2/3 40,500 का इंटू 2/3 जो हो गया 27,000. एंड एक बार कंफर्म भी कर लेते हैं, 40,500 का इंटू 1/3 तो जो हो रहा है 13,500. दैट्स परफेक्ट. लाइटिंग पीनल अकाउंट टू लाइटिंग, सबको समझ में आ रहा है? यस. अगर सब समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक बिल्कुल कर दीजिएगा. लाइटिंग है यहाँ पे P&L में 1/3. अमाउंट हो गया 13,500. थम्स अप. राइट. एक्सपेंस नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग का नहीं है. P&L में 45,000. ओके. thereafter इसके बाद सन्ड्री क्रेडिटर्स, बैलेंस शीट का आइटम अभी नहीं चाहिए. बिल्स पे भी बैलेंस शीट का आइटम अभी नहीं चाहिए. सेल ऑफ स्क्रैप मैंने ऑलरेडी बता दिया था बेटा जी. सेल ऑफ स्क्रैप किधर जाना चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग में क्रेडिट साइड. सेल ऑफ स्क्रैप, सेल ऑफ स्क्रैप कितना है, सेल ऑफ स्क्रैप का अमाउंट 75,000. नेक्स्ट, कमीशन रिसीव्ड 13,500. कमीशन रिसीव हुआ किधर जाना चाहिए सर, कमीशन रिसीव हुआ तो P&L में जाना चाहिए. बिल्कुल सही जगह बेटा जी. बाय कमीशन रिसीव्ड, P&L अकाउंट क्रेडिट साइड. कितना मिला कमीशन बच्चा पार्टी, कमीशन रिसीव्ड इज 13,500. P&L अकाउंट क्रेडिट साइड हमारी इनकम है. ठीक है. प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी मेंटेन एट 1% ऑफ सेल्स. पीडीडी P&L अकाउंट डेबिट साइड जाता है. एग्री करोगे? तो यहाँ पे मैंने P&L अकाउंट डेबिट साइड आ जाना है, और प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स टू पीडीडी कितना रखना है, 1% ऑफ सेल्स. सेल्स कितना है आपका, 50,60,000. 50,60,000 हो गया. 2 0 छोड़ दो, 50,160. 50,160. ठीक है ना. पीडीडी इतना होना चाहिए, 50,160. लेकिन बच्चा पार्टी क्वेश्चन में ऑलरेडी कुछ पीडीडी दिया है. प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स आपके पास ऑलरेडी है. कितना है, 40,000 माइनस 40,000, 49,500. नया कितना पीडीडी रिक्वायर्ड है, आपको कितना नया बनाना पड़ेगा. एकदम सिंपल सा लॉजिक है बेटा. तुम्हारी पास 49,500 ऑलरेडी सेट करेला છે.
અને કરવાના છે 50,160 તો હવે કેટલા કરવાના that should be charged to PNL 50,160 minus 49,500 that is 660 rupees आपको अभी PNL में चार्ज करना पड़ेगा आपको एक्सपेंस आउट करना पड़ेगा did you get that super thereafter provision for doubtful debts के बाद कैपिटल अकाउंट्स बैलेंस शीट लायबिलिटी सेल्स का इंफॉर्मेशन दिया कितना तक को मैन्युफैक्चरिंग ना सर बाय सेल्स कितना है सेल्स का अमाउंट आपको 50,60,000 ओके उसके बाद मैं कल सवा देंगे मैं भूल गई हूँ कि भाई फोन कर नॉन पढ़ने तो हम लोग बजे अपना 6 वागे तो आएगा आज ही पर ना वो हाल से कर दिया સાચો પણ ગરી તો જઈ આવું પછી ના એવું એટલે પણ ઢોળાઈ જશે પાણી સોતો લોકો બાય ओके यहाँ तक करने के बाद बच्चा पार्टी सेल्स का ध्यान रखना है ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड अपने रिकॉर्ड कर दिया उसके बाद फॉलोइंग एडिशनल इंफॉर्मेशन अवेलेबल क्लोजिंग स्टॉक दिया रॉ मटेरियल का फिनिश गुड्स का एंड डब्ल्यूआईपी का रॉ मटेरियल का क्लोजिंग स्टॉक किधर रिकॉर्ड करूं करने के लिए अपन को लगेगा 4,86,000 बेटा जी मैंने रिकॉर्ड करना है माइनस करना है सो अमाउंट हो गया आपका 6,50,000 प्लस 25,50,000 minus 486,000 that is 26,94,000 26,94,000 इतने का रॉ मटेरियल अपन ने कंज्यूम किया फिनिश गुड्स का क्लोजिंग स्टॉक ये किधर जाता है यार मेरे को याद नहीं है बताओ ना फिनिश गुड्स का क्लोजिंग स्टॉक बाय क्लोजिंग स्टॉक सर ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड बैलेंस शीट असेट बैलेंस शीट तो बनाना नहीं है तो ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड डाल दो खाली 5,43,000 सिंपल and work in progress का closing stock WIP का closing stock should be by closing stock किस चीज का है ये WIP work in progress 2,34,000 कंफ्यूजन के नो कंफ्यूजन ऑल सेट ऑल क्लियर पक्का है सबको समझ में है जोरदार नाउ इतना करने के बाद आगे बढ़ते हैं कोई एडजस्टमेंट रह तो नहीं गया रीड कर लेते हैं कि डेप्रिसिएशन याद है ना salaries and wages unpaid for the year ended 31st March 2024 were respectively 27,000 and 60,000 salaries unpaid है भाई salaries में आ जाइए salaries where are you yes here it is salaries 27,000 unpaid है plus outstanding salaries लिखो कितना है 27,000 सो कितना बन गया बेटा जी आपका टोटल सैलरी 3,27,000 एंड वेजेस में भी कुछ अनपेड था क्या यस सर वेजेस में भी कुछ अनपेड है वेजेस वर 60,000 का वेजेस आउटस्टैंडिंग है प्लस आउटस्टैंडिंग वेजेस अच्छा सर इसका दूसरा इफेक्ट बेटा बिल्कुल चाहता ना बैलेंस शीट में लेकिन अभी बैलेंस शीट बन रहा है क्या नहीं बन रहा सर इसलिए दिख नहीं रहा है ठीक राइट तो इट शुड बी 4,50,000 ईयर चलिए सबको समझाओ नाइस Machinery is to be depreciated by 10% and office furniture by 7.5%. Machinery का depreciation, manufacturing account. To depreciation on machinery. बैलेंस शीट में एसेट साइड मशीनरी लिखा होता उसमें से माइनस करते और मैन्युफैक्चरिंग में डेबिट साइड मशीनरी का डेप्रिसिएशन कितना परसेंट बोला है 10% मशीनरी का वैल्यू कितना है 21 लाख का 10% दैट इज 2,10,000 यस बच्चा पार्टी क्लियर एंड फर्नीचर के ऊपर ऑफिस फर्नीचर के ऊपर 7.5% तो ऑफिस फर्नीचर के ऊपर डेप्रिसिएशन किधर जाना चाहिए पिनल टू डेप ऑन ऑफिस फर्नीचर डेप ऑन फर्नीचर कितना बोला 7.5% ओके फर्नीचर है आपका 3 लाख 3 लाख का 7.5% that comes to 22,500 बोलो चकाचक क्लियर पक्का पक्का नाइस Provision for document is taken care. Rent is to be charged 3/4 lighting expenses taken care. Prepare manufacturing account, trading account.
ठीक है, एनपीएल ऑल सॉर्टेड बेटा जी, ऑल एडजस्टमेंट्स डन, लेट अस जस्ट ट्राई टू क्लोज दैम। पहले किसको क्लोज करूं, पीएनएल को कर लूं? ओ भाई साहब, पहले मैन्युफैक्चरिंग को क्लोज करना मांगता है, डू यू अग्री? चलिए आइए क्लोज करते हैं, एंड टोटल सिम्स टू बी डेबिट साइड में। अच्छा, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का भी कोई, अच्छा ट्रेडिंग अकाउंट का भी डेबिट बैलेंस क्रेडिट बैलेंस कोई भी हो सकता है, करेक्ट? पीएनएल अकाउंट का भी डेबिट बैलेंस क्रेडिट बैलेंस कोई भी हो सकता है, मतलब प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। ट्रेडिंग का भी कोई भी बैलेंस हो सकता है, और मैन्युफैक्चरिंग का भी कोई भी बैलेंस हो सकता है कि नहीं? जो भी आपका आंसर है मेरे को यहाँ पे कमेंट बॉक्स में डालो ना। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का हमेशा कौन सा बैलेंस होएगा, कि कोई भी बैलेंस होएगा, जो भी बैलेंस है उसका रीजन के साथ डालेगा, है ना? लेट अस जस्ट चेक इट। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का हमेशा कौन सा बैलेंस होएगा, या तो कोई सा भी हो सकता है कि नहीं हो सकता, मेरे को बताओ, चैट बॉक्स में डालो रीजन के साथ। 4,50,000, 33,000, and 1,35,000, and 27,000 plus 2,10,000 plus 2,85, 2,85,000, 38,79,000 आ रहा है मेरे को। आपको भी उतना ही चाह रहा है क्या? 38,79,000, 38,79,000, and therefore your GP, जीपी तो नहीं, क्या बोलते हैं इसको? कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग बोलते हैं बेटा जी। क्या बोलते हैं? कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग का आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड कितना आ रहा है? 38,79 माइनस 75,000 माइनस 234,000, 35,70,000 आ रहा है बाई कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चर, दैट इज 35,70,000। आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के दे रहे हो कि मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का कौन सा बैलेंस होएगा, विथ रीजन टू cost of manufacture. It is somewhat like your purchase, Bacha Party. 35,70,000, एंड ओपनिंग स्टॉक भी है, परचेजेस भी हो गया, सेल्स भी है, एंड क्लोजिंग स्टॉक भी है। तो क्या मिलना चाहिए आपको? इथे जीपी मिलना करी, सही बात है। 4,65,000 प्लस 35,70, 40,35,000 यहाँ पे डेबिट में दिख रहा है, और क्रेडिट में अगर बात करूं तो 50,16,000 प्लस 50,60,000 प्लस, हाँ, 540,000, 555,9,000, 5,50,000, 55 lakh, 55 lakhs, 59,000, 55 lakhs, 59,000। तो बच्चा पार्टी टू हो गया आपका जीपी। जीपी कौन? ग्रॉस प्रॉफिट। जीपी मतलब क्रेडिट बैलेंस, करेक्ट? जो था माइनस कर लिया, एंड व्हाट आई गेट इज 15,24,000, 15,24,000। Everybody convinced, right? Then by GP, ट्रेडिंग अकाउंट का जीपी जो था फिर हम लेके आ गए 15,24,000, एंड 13,500 जो था वो तो है ही है, तो क्रेडिट साइड में आपका टोटल बन रहा है 15,37,500, 15,37,500, एंड एटू एनपी बन जाता है बच्चा, एनपी 10,43,340। चेक कर लीजिएगा एंड कंफर्म। आपको अभी उतना ही चाह रहा है क्या? तो दैट वाज अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। आई होप सबको समझ में आ गया है। इट वाज अ गुड इजी क्वेश्चन। अगर आपको अभी भी और भी कोई क्वेश्चन में डाउट है, कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन नहीं समझता, मॉड्यूल का हो सकता है, आपकी कोई और रेफरेंस बुक का हो सकता है, तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेज दीजिए। आई विल मेक अ वीडियो फॉर इट एंड फॉरवर्ड इट टू यू, राइट? सो टिल देन सीखते रहे, क्योंकि सीखना बंद तो जीतना बंद। बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।